Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, all the students of language, literature, and linguistics. I welcome all of you to my YouTube channel. Today, we are going to discuss a very important topic and question of morphology, that is, how new words are made in English. So, these are the 9 subpoints. These are the 9 terms which we are going to discuss in this lecture. But before we start, I request all of you to subscribe to the channel, like the video, and after watching the video, must give your valuable opinion in the comment section. Thank you very much. So we are going to start how new words are made in English. First of all, there is introduction. Language is always changing. Language हमेशा change होती है. New words are created in many different ways. मुख्तलिफ तरीकों से जो words हैं वो create होते हैं, बनते हैं. Sometimes we make short form of long words. Long words की short form बनाते हैं. Other time we mix two words together. Some words come from people's name, places, or even other languages. कुछ words लोगों के नाम, जगहों के नाम और बाकी languages से आते हैं. आज के इस लेक्चर में, इस टॉपिक में, वी विल लर्न अबाउट डिफरेंट वेज. हम वो मुख्तलिफ तरीके देखेंगे. इंग्लिश मेक्स न्यू वर्ड, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज में नए वर्ड्स बनते हैं. ईच मेथड हेल्प्स द लैंग्वेज ग्रो. हर मेथड जो है वो लैंग्वेज को ग्रो करने में अपना रोल प्ले करता है एंड स्टे यूजफुल इन डेली लाइफ. First of all, we will look at clipping. Clipping happens when a long word is shortened. जब एक लंबे वर्ड को हम शॉर्ट कर देते हैं, but the meaning stays the same. लेकिन मीनिंग वही रहता है. People do this in everyday speech to make word quicker and easier to understand. For example, telephone becomes phone, advertisement becomes ad, refrigerator becomes fridge, gymnasium becomes gym. अब डेली लाइफ में हम फोन, एड, फ्रिज, जिम बोलते हैं. ठीक है, ये डेली लाइफ में. लेकिन हमारा पर्पस फोन को टेलीफोन का नहीं होता है. तो that is called clipping. The shorter word still means the same thing as the original, just with fewer syllables. Blending. Blending is when two words are mixed. जब हम दो words को mix करते हैं together to create a new word. Usually we take the beginning of one word, एक word की beginning को लेते हैं, and the end of another, और दूसरे के end को लेते हैं. For example, breakfast. Breakfast plus lunch, we will call it brunch. Smoke plus fog, smoke. Motor plus hotel, motel. Web plus log, blog. These words are often fun and creative, and they are used in modern or casual English. Suppletion. Suppletion happens when a word changes completely. जब एक वर्ड मुकम्मल तौर पर चेंज हो जाता है, उस वक्त suppletion होती है. Instead of following normal grammar rules. These words don't follow patterns. इन words में pattern नहीं होते. Like adding ed form for past tense. Instead, a different word form is used. For example, go अब present है. जब हम इसको पास्ट में चेंज करेंगे तो यहाँ पे कोई रूल नहीं है, कोई पैटर्न नहीं है, लेकिन हम इसको वेंट कहेंगे, सेकंड फॉर्म पास्ट. और जब हम इसे थर्ड फॉर्म में यूज करेंगे तो हम गॉन कहेंगे. इस तरह जो गुड है, इस ये एडजेक्टिव की फर्स्ट डिग्री है. जब हम इसकी सेकंड डिग्री बनाएंगे, कंपैरेटिव डिग्री, दैट विल बी बेटर, और थर्ड जो है वो बेस्ट होगी. इस तरह बैड जो है एडजेक्टिव की फर्स्ट यानी पॉजिटिव डिग्री है. जब हम सेकंड बनाएंगे, दैट विल बी कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे सेकंड, दैट विल बी वर्स, यानी बैड, बुरा, वर्स, बदतर, और वर्स्ट ये थर्ड डिग्री है, बदतरीन. These forms come from very old version of language and have stayed the same over time, और अभी भी ये ऐसे ही language में use होती हैं. Initialisms and acronyms.
both are made from first letters of a group of words. ये जो groups of words का जो first letter होता है उनसे बनते हैं, but they are read differently. लेकिन हम इनको different तरीके से पढ़ते हैं. Initialisms are said letter by letter. इनको हम यानी हर word इनका, हर अल्फाबेट जो है उसको बोलना पड़ता है. जैसे FBI. अब हम एफ हमने अलग पढ़ा, बी अलग पढ़ा, आई अलग पढ़ा. ये FBI ये पूरा पढ़ना पड़ेगा, यानी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन. इस तरह टी वी पूरा पढ़ना पड़ेगा. टेलीविजन. इस तरह USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, USA हमें पूरा पढ़ना पड़ेगा. एक्रोनिम्स आर सेड लाइक रेगुलर वर्ड्स. फॉर एग्जाम्पल, अब हम NASA नहीं बोलेंगे, हम बोल देंगे नासा. ये एक्रोनिम है. तो किसका? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, यूनेस्को. इस तरह यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन. रडार, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग. इसी तरह इन वर्ड्स को हम पूरा पूरा पढ़ देंगे. दीज हेल्प शॉर्टन लॉन्ग नेम. जो लॉन्ग नेम्स होते हैं उनको शॉर्टन करने में ये हमारी हेल्प करते हैं, मेक देम इजियर टू रिमेंबर. Borrowing and calking. Borrowing is when a word is taken directly. Borrowing उस वक्त होती है जब हम एक word को directly लेते हैं from another language. Calking or loan translation is when a phrase from another language is translated. जब हम किसी word को या phrase को दूसरी language से translate करते हैं word for word. अब borrowing की ये एग्जाम्पल हैं. अब ये पियानो है, ये हमने इटालियन से एज इट इज ले लिया है. सुनामी फ्रॉम जापानीज से एज इट इज ले लिया है. कैफे फ्रेंच से हमने एज इट इज ले लिया है. तो ये borrowing की एग्जाम्पल्स हैं. तो कैल्किंग जैसे स्काई स्क्रैपर है, तो हमने स्काई स्क्रैपर कहा लेकिन ये फ्रेंच में वर्ड है, इसको हमने ट्रांसलेट किया है. तो ग्रेट सिजल, ग्रेट सेल, ये फ्रेंच में है, इसको हमने ट्रांसलेट करके स्काई स्क्रैपर का. इस तरह जर्मन में अम्बरमेंश है, तो हमने वहां से इसको लिया, ट्रांसलेट किया और इसको सुपरमैन हमने कहा. दिस शोज हाउ लैंग्वेजेस शेयर वर्ड्स एंड आइडियाज. तो इस तरह ट्रांसलेट करके जो हम वर्ड टू वर्ड हम ले लेते हैं, दैट इज कॉल्ड कैल्किंग. ठीक है. नेक्स्ट हमारा जो है ये कॉइनेज है. कॉइनेज इज व्हेन अ टोटली न्यू वर्ड इज मेड. जब पूरा ही नया वर्ड बन जाता है, ऑफन फॉर प्रोडक्ट, आइडिया और इन्वेंशन. दीज वर्ड्स आर ऑफन क्रिएटेड बाय कंपनीज. जैसे अब गूगल वर्ड है बिकम अ वर्ब मीनिंग टू सर्च ऑनलाइन. इस तरह क्लिनिक्स है यूज्ड फॉर एनी फेशियल टिश्यू. इस तरह रॉक्स है यूज्ड टू मीन photocopy. These words usually began as brand names but become common in everyday language. Toponyms. Toponyms are words that come from place names. ये place names से होते हैं. Champagne. Champagne का जो word है ये from Champagne region of France. ये फ्रांस का एक इलाका है शैम्पेन, वहां से ये आया है तो शैम्पेन बन गया. जीन्स. इस तरह ये जिनोवा, इटली, इटली के शहर जो है जिनोवा से आया है, तो ये जीन्स. इस तरह हैमबर्गर, ये जर्मनी की सिटी हैमबर्गर से आया है, तो इसको हम हैमबर्गर कहते हैं. दीज वर्ड शो हाउ प्लेसेस कैन become part of the language. Language keeps growing as people create new words. लैंग्वेज ग्रो होती रहती है जैसे ही हम नए नए वर्ड्स बनाते हैं. एंड बारो और बारो करते हैं फ्रॉम अदर्स. ऑल दीज मेथड्स हेल्प मेक लैंग्वेज richer and more interesting. Eponyms. Eponyms are words that are made from the names of real people. ये वो नेम हैं जो रियल पीपल के नेम से बनते हैं. Often because those people were the first. क्योंकि ये अक्सर वो लोग थे टू इन्वेंट, जिन्होंने इन्वेंट किया, यूज किया, या फिर किसी चीज की वजह से फेमस हुए. ओवर टाइम देयर नेम, उनके जो नाम हैं,
turn into regular words, ये regular words में change हो जाते हैं used by everyone। जैसे अब sandwich है, from the Earl of Sandwich के नाम से है, who wanted food he could eat without stopping his card game। इस तरह जो डीजल है, फ्रॉम रेडोल्फ डीजल, द इन्वेंटर्स ऑफ डीजल इंजन। तो डीजल इंजन का ये जो इन्वेंटर है इसका नाम था रेडोल्फ डीजल, तो उसके नाम से डीजल पड़ गया। बायकॉट, फ्रॉम चार्ल्स बायकॉट, अ लैंड एजेंट था ये आयरलैंड में जिसका सोशली बायकॉट किया गया। तो ब्रेल, फ्रॉम लुइस ब्रेल हु क्रिएटेड अ राइटिंग सिस्टम, जिसने राइटिंग का सिस्टम ब्लाइंड लोगों के लिए बनाया। These words remind us how people's name can live on in everyday languages. Apophony. Apophony is when the inside sound of a word change. जब word के अंदर की जो sound होती है change होती है to show a different grammatical form like tense, number or comparison. Instead of adding something like ed for past tense, the vowel in the word changes. जैसे sing है तो इसका past है sang और थर्ड फॉर्म जो है sung। इस तरह ड्राइव, इसकी सेकंड फॉर्म ड्रोव एंड थर्ड फॉर्म ड्रिवन। इस तरह फुट जो है इसका प्लूरल हम जब करेंगे तो फीट करेंगे, जब टूथ का प्लूरल करेंगे तो टीथ करेंगे, यानी विद इन द वर्ड। दिस टाइप ऑफ चेंज इज समटाइम कॉल्ड vowel gradation or ablot. It is an old and natural way that words change in English. Next is autonyms. Autonym is the name used by the people. Autonym वो name है जो लोग इस्तेमाल करते हैं और country themselves या मुल्क अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। It is their own name for themselves। ये उनका वो नाम होता है जो वो अपने लिए करते हैं। Exonym is the name। Exonym वो name होता है used by outsider जो बाहर के लोग इस्तेमाल करते हैं। People from other countries or languages। अब हम सबसे पहले ऑटोनिम की एग्जांपल देखते हैं। द कंट्री वी कॉल जर्मनी, जिस मुल्क को हम जर्मनी कहते हैं, इज कॉल्ड डच लैंड। तो वो डच लैंड है बाय द पीपल हु लिव इन देयर। तो वहाँ के लोग जो हैं अपने अपने मुल्क को डच लैंड कहते हैं। ठीक है, डच लैंड ऑटोनिम है। हम उसको जर्मनी कहते हैं, हम चूंकि आउटसाइडर हैं हम जर्मनी कहते हैं, तो जर्मनी एक्सोनिम है। द कंट्री वी कॉल जापान, ठीक है, इज कॉल्ड निहॉन और निप्पॉन। निहॉन और निप्पॉन जो है इसके अपने मुल्क के लोग कहते हैं, तो निहॉन निप्पॉन ये ऑटोनिम है। और जापान चूंकि आउटसाइडर कहते हैं तो ये एक्सोनिम है। These names show how language can change, कि language किस तरह change होती है depending on who is speaking, कि कौन बोल रहा है and where they are from. Conclusion, we have seen that English has many ways, कि English में बहुत सारे ways हैं to create new words, नया word बनाने में। These include shortening, इसमें शामिल है short करना, mix करना, borrow करना, sound को change करना, और लोगों के नाम को यूज करना और प्लेसेस को। All of these help us talk about new things, ideas and inventions by understanding how words are formed। ये समझना कि वर्ड्स कैसे बनते हैं, ये समझकर we can better understand, हम बेहतर समझ सकते हैं and enjoy the language, और लैंग्वेज को एंजॉय कर सकते हैं वी यूज एवरी डे, जिसे हम रोजाना इस्तेमाल करते हैं। सो स्टूडेंट, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, very important question of morphology. The topic was how new words are made in English. We discussed these 9 points. I'm sure you might have understood it properly. I request all of you to subscribe to the channel, like the video, and share your opinion in the comment section. Thank you very much.